ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਐਨਡੀਏ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਸੰਬੋਧਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰੱਖਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਤਲ। ਫਿਰ ਕਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਇਨਸਾਫ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ। ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੈਸਾ। ਬਤੌਰ ਐਲਓਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ। ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਭੜਕੀ ਬੀਜੇਪੀ। ਚੱਲਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸ਼ਿਵ ਇਸਲਾਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਤੇ ਜੀਸਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਸੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੰਗੀ ਖੀਮਾ ਯਾਚਨਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਲਤੀ। ਸੁਬੇਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸਾਫ। ਮਹਿਲਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦੇਸ਼। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਜੋਤ ਸੰਧੂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੈਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੋਂ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 6-7 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ 6-7 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਤਰਾਵੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ रोक ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ है। हिमांशु नारंग मेरे सहयोगी फोन लाइन पे ने। हिमांशु पूरी जानकारी चाहेंगे कब हादसा हुआ, अभी तक की क्या कुछ अपडेट है? देखिए सुबह 4:30 बजे के आसपास हादसा हुआ है और हादसे का कारण मालगाड़ी की तेज रफ्तार बताया जा रहा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। प्राथमिक तौर पर ऐसी जानकारी मिली है, उस आधार पर हम जानकारी पहुंचा रहे हैं। तरावड़ी जो करनाल आने से पहले करीब 15 किलोमीटर या 13 से 14 किलोमीटर कुरुक्षेत्र से अब अगर आप करनाल की तरफ आते हैं तो वहां पर मालगाड़ी के जो कंटेनर थे, हालांकि ये कंटेनर खाली बताए जा रहे हैं, वो कंटेनर गिर जाते हैं। कोई 1-2 कंटेनर नहीं गिरे हैं, 7 से 8 कंटेनर गिरे हैं। लेफ्ट में भी गिरे हैं और राइट में भी गिरे हैं, जिससे पूरा जो रेलवे ट्रैक है अमृतसर से दिल्ली का वो बाधित हो गया है। क्योंकि अमृतसर से तमाम गाड़ियां दिल्ली की तरफ जाती हैं, वाया तरावड़ी करनाल होकर जाती हैं। दिल्ली से तमाम गाड़ियां जाती हैं अमृतसर की तरफ, जम्मू कटरा की तरफ। वो गाड़ियां भी इसी ट्रैक से जाती हैं, इसी रूट से जाती हैं। जो रेल की पटरी है वो क्षतिग्रस्त हुई है, वो बाधित हुई है। इसके साथ साथ जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली की तारें होती हैं, वो बाधित हो गई है और उसका नुकसान हुआ है। रेलवे विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और जो बचाव का कार्य है और राहत का कार्य है वो शुरू हो गया है। क्योंकि एक प्रयास किया जा रहा है कि नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। सबसे राहत की गनीमत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है, सिर्फ नुकसान हुआ है रेलवे ट्रैक को। एक अच्छी बात यह भी है कि दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया है। जो दिल्ली से
अमृतसर जाती हैं और अमृतसर से दिल्ली की तरफ जाती हैं, ताकि कोई और रेल बड़ा हादसा ना हो पाए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि रेलवे ट्रैक पर कोई ट्रेन खड़ी रहती है और पीछे से कोई और ट्रेन ना आ जाए। इसके लिए जो जानकारी है पर्याप्त वो तमाम अलग अलग स्टेशन मास्टर्स तक पहुंचा दी गई है। फिलहाल ये रेलवे ट्रैक बाधित है। प्रयास पूरा यही है कि जल्द से जल्द सुचारू रूप से काम दोबारा से शुरू हो, तमाम गाड़ियां एक स्थान से दूसरे स्थान दोबारा पहुंच सके, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं रेलवे विभाग के कर्मचारी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ 6-7 ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ ਸਨ ਔਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ भी लिया गया है, रिपोर्ट पेश की थी। करनाल में तरावड़ी के अंदर एक बड़ा रेल हादसा हो जाता है। दरअसल सुबह के वक्त जब मालगाड़ी चंडीगढ़ से दिल्ली के रूट पर थी, उसी दौरान ये हादसा होता है। आप उसी मालगाड़ी को देख पा रहे हैं जो अभी रेलवे ट्रैक पर यहाँ पर खड़ी है। और ये मालगाड़ी जो है नॉर्दर्न रेलवे की है, उत्तरी रेलवे की है, जो दिल्ली के रूट पर थी। और ऐसे में ये तमाम जो कंटेनर आप देख पा रहे हैं ये मालगाड़ी के ऊपर रखे हुए थे। किन कारणों से हादसा हुआ है ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। ये जांच का विषय है पुलिस के लिए भी और साथ ही साथ रेलवे विभाग के लिए भी। लेकिन ऐसे तमाम कंटेनर 7 से 8 अलग अलग जगहों पर आप देख पा रहे हैं गिरे हुए हैं। और जो पब्लिक है वो यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि ये जो रेलवे लाइन है करनाल से जो चंडीगढ़ की तरफ जाती है या करनाल से जो दिल्ली की तरफ जाती है वो बाधित हो गई है। जाहिर सी बात है अमृतसर और से दिल्ली की जो रेलवे ट्रैक है वो काफ़ी व्यस्तम रेलवे ट्रैक है। लगातार जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, चाहे वो राजधानी एक्सप्रेस हो या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हो, इसी ट्रैक से आगे की तरफ बढ़ती हैं। और फिलहाल उन्हें रुकवा दिया गया है, उनका रूट चेंज कर दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जो बिजली के खंभे हैं, बिजली की तारें हैं, वो भी बाधित हो गई हैं। और फिलहाल रेलवे विभाग ने दोनों ही जो साइड की ट्रेनें हैं उन्हें भी रुकवा दिया गया है। आप देख पा रहे हैं जब कंटेनर गिरा है तो ऐसी जगह कई जगह रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ है। आप देख पा रहे हैं खदान जो साइड में है, यानी कि रेलवे ट्रैक के परली तरफ जो खाली इलाका है वहां पर भी कंटेनर गिरा हुआ है। ऐसे 7 से 8 कंटेनर अलग अलग जगहों पर गिरे हुए हैं। रेलवे विभाग की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं, पुलिस की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और उनकी तरफ से जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर हादसा कैसे हुआ। करीब सुबह 4:30 बजे का ये रेल हादसा बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी जब तमाम कंटेनर गिरे, क्योंकि तेज़ रफ्तार में भी मालगाड़ी हो सकती है या फिर कोई और कारण हो सकता है, वो अभी जांच का विषय है। लेकिन रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया है। अमृतसर से दिल्ली जाने वाला दोनों तरफ की ट्रेनों को रुकवा दिया गया है रेलवे विभाग की तरफ से और इन कंटेनर्स को साइड करने का प्रयास किया जाएगा ताकि कोई और हादसा ना हो। ये बिजली के खंभे, बिजली की तारें भी बाधित हुई है, रेलवे लाइन भी बाधित हुई है और जो तमाम नुकसान है वो भी देखने को मिला है। लेकिन राहत की बात ये है कि इसमें किसी की जान नहीं गई है। न्यूज़ 18 के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਦਕੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸਿਏ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇ और फिर उस तो बाद अपने मनसूबियां दे विच कामयाब होया जाए, पर इत्थे नाकाम होया है घुसपैठिया। फाजिलका तो खबर है, फाजिलका दे विच बीएसएफ ने दस्सिया कि घुसपैठिया ढेर कर दिता है। सादकी बॉर्डर दस्सिया जा रहा है जिथों घुसपैठ की कोशिश की जा रही सी तां पाकिस्तान वाले पासियों भारत के अंदर ये दाखल हो रहा सी। हालांकि कई बार अजिहा हुंदा है कि जिहड़े अनजाने दे विच लोग कई बार आ जाते हैं और फिर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिता जाता है तो उस तो बाद बिल्कुल सही सलामत उन्होंने देश वापस उन्होंने भेज दिता जाता है। पर कुल मिला के बीएसएफ नूं ये जांच हुंदी है कि आखिरकार कौन गलती दे नाल घुसपैठ कर रहा है या फिर कौन जिहड़ा है उस चीज़ के मनसूबे गलत ने। तो उस नूं वेखदे हुए जिहड़ी कार्रवाई है वो की गई है। तो फाजिलका तो खबर है, फाजिलका दे विच बीएसएफ ने घुसपैठिया ढेर किया है।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੀਐਮ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੀਐਮ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਨੇ कि हंगामा हो सकता है। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। देश की सेना जानती है, पूरा देश जानता है कि अग्निवीर स्कीम सेना का स्कीम नहीं है,
पीएमओ का स्कीम है। और पूरी सेना जानती है कि स्कीम प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड था, स्कीम सेना का ब्रेन चाइल्ड नहीं था। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है और बहुत सोच समझकर यह योजना लाई गई है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्रकार की योजनाएं दुनिया के कई देशों में है, यूएस में है, यूके में है, वहां पर किसी को कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। अब बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के लीगल गारंटी ये बताए, जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਡਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਡਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। तो किसानों ने 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाय सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत है आपसे। अब उधर हाउस में हर एक मेंबर जो उनको ठीक लगता है वो बोलता है, उन्होंने को जो ठीक लगा वो बोले, उनको बधाई हो। लेकिन किसानों की बात भी उठाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? हाँ, वो तो किसानों का मुद्दा तो हमेशा से आप लोग उठाते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात। उन्होंने किसानों के साथ जिस तरीके से 800 किसानों को इधर बॉर्डर में बैठा के रखा और आज तक सरकार ने ये स्वीकार ही नहीं किया है कि 800 किसानों की मौत हुई, वो लाखों किसान जो उधर बॉर्डर में बैठे रहे गर्मी में, धूप में, बरसात में, और उनको एक वादा करके उठाया गया कि आपको एमएसपी एक लीगल गारंटी बनाई जाएगी
और एक कमेटी बनाई जाएगी। और आज तक भी वो उसी धरने में बैठे हुए हैं वही चीज़ें मंगवाने के लिए, और आज तक एक्नॉलेज तक नहीं किया कि 800 किसानों ने अपनी जान शहीद कर दी इस मांग के लिए। सो बिल्कुल किसानों को और हमारे पंजाब के किसानों को तो आतंकवादी, खालिस्तानी, वक्फवादी ये जब भी हो तो ये सुनने को मिलता है, और परिजीवी तो बोला ही था प्रधानमंत्री जी ने। सो ये तो है कि किसानों के साथ जिस तरीके का ना तो डबल इनकम हुई है, और ऊपर से जो किसानों की अपनी जानें गई हैं वो मुद्दे भी आपने आज तक पूरे नहीं किए, और ना ही उनको एक्नॉलेज करके उनको कोई कंपनसेशन दी है। सो किसानों के मुद्दे में तो मैं उनके साथ सहमत थी, हालांकि उनकी और किसी बात से आप सहमत नहीं है क्या उनकी अन्य बातों पर? उन्होंने वो अपनी उनकी की बात उठाई, कई सारी बातें उन्होंने उठाई है। हाँ तो ठीक है, वो अपनी सोच रखते हैं। हम कांग्रेस के साथ अकाली दल कभी सहमत हो ही नहीं सकती, मोटी बात ये है। उधर लोकसभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਿਆ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨੈਕਸਸ ਕਾਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। हमारा एक साथी था, उसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, एक कलाकार था, दुनिया में उसका नाम था। चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे केरला हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, उसके गाने पर दुनिया झूम उठती थी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं सभापति साहब, टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में हर तीसरे दिन सिद्धू मूसेवाला बजता है। बिलबोर्ड, जो बिलबोर्ड दुनिया के 100 गाने, उनमें से सिद्धू मूसेवाला हर रोज पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति रहता है। उसके साथ हुआ क्या, मैं आज इस सदन को जानकारी और बताना चाहता हूं आपके माध्यम से। क्या हुआ 28 साल के नौजवान के साथ। हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये कहते हैं कि हम हैं, चिंता मत कीजिए। लेकिन क्या हुआ, नौजवान 28 साल के नौजवान को गोलियों से मार मारकर, 10 गोलियां मारकर दिन दिहाड़े मार दिया गया। और मारा किसने? सभापति साहब, बहुत से लोग मारे जाते हैं, मारा किसने? एक तिहाड़ जेल में बैठा एक गैंगस्टर जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है, उसने मारकर कहा, जेल से इंटरव्यू दिया और कहा मैंने मारा है, मैंने मारा है। अभी तो सिद्धू मूसेवाला मारा है, अभी इसके बाप को भी मरना होगा। जेल से इंटरव्यू दिया, आप नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं, कब इंसाफ मिलेगा सिद्धू मूसेवाला को? क्या होगा 28 साल का नौजवान जिसकी मां के एक बेटा था, एक, और बिना शादी के ब्याह में हमारे सर पर सेरे बांधे जाते हैं, सेराबंदी होती है, आपके भी होती है। डेड बॉडी पड़ी से, डेड बॉडी पर मेरी उस मां ने, सिद्धू मूसेवाले की मां ने फिर सेरा लेकर आए और अपने बेटे के लाश पर, सर पर सेरा बांध के उसकी बधाई दी है। ये हालात हैं। आप देश के गृह मंत्री हैं, इंसाफ दिलाएं और जेलों में बैठे ऐसे गैंगस्टर को आप निकाल के उस परिवार को इंसाफ दें। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੀਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। आत्म निर्भर करने का काम मैं सभापति जी सरकार नूं बेनती करदा, असी कोई भीख नहीं मंगते, असी आपदा हक है जिहड़ा ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਹੈਵਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ ਰੋਕਿਆ, 557 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਐਸਐਸਏ ਦੇ ਰੋਕ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ
उधर अरविंद केजरीवाल की पटिशन ते आज दिल्ली हाई कोर्ट दे विच सुनवाई है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी नूं चुनौती दी हुई है। कल हाई कोर्ट दे विच दस्सिए कि पटिशन दाखिल की गई सी तां शराब मामले च सीबीआई ने केजरीवाल नूं गिरफ्तार किया है और फिलहाल तिहाड़ जेल दे विच न्यायिक हिरासत च ने अरविंद केजरीवाल 29 जून नूं राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत दे विच भेजिया सी, जिस तो बाद अज सुनवाई होएगी क्योंकि सीबीआई की गिरफ्तारी नूं चुनौती दी गई है हाई कोर्ट दे विच और वेखना होएगा कि इस पटिशन नूं लैके की कुछ सुनवाई रहिंदी है। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਈਡੀ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੀਏ।